शुरू कीजिए आप। Thank you, sir. Sir, in November 2011, when we heard about the government bringing in FDI in multi-brand retail, like all other Indians, we too were very welcoming of it, thinking that this new policy that was being introduced by the government आपका नाम हो ही would obviously safeguard the livelihood and the interests of every section of our society. प्लीज बोलने दीजिए, कोई यील्डिंग नहीं कर रहे हैं। साहब मेरा टाइम नोट कर ले, मैं अब शुरू कर रही हूँ। चलिए बोलिए ना, आप बोलिए तो, आप उनको कह देख रहे हैं। Sir, in 2011, when we heard about the government bringing in FDI in multi-brand retail, we, like many other people in our country, were very welcoming of this new policy, thinking that obviously any government would safeguard the interests and the livelihood of every section of this society. Sir, to even imagine remotely that the government would barter away the livelihood of thousands of their own people to foreign national retail, foreign multi-brand retail giants just to gain global acceptance and corporate appreciation was not only inconceivable but unimaginable. An FDI policy which should have been used to strengthen infrastructure, boost further export, and create even more new avenues of jobs and employment turned out to be an FDI policy which would actually jeopardize the existing livelihood and jobs of millions of traders, shopkeepers, laborers, mazdoors, farmers, and a host of other people, just to benefit a multi-billion-dollar retail giant foreigners who earn their livelihood by squeezing out these very small traders, monopolizing the market, and then controlling the monopoly and the market of these products. Sir, the current FDI policy framed by the Congress government is nothing short of bartering away the interests of your own people and your own country. But I guess, sir, that a government that has been mired in the last so many years has nothing to offer but enormous amount of corruption, spiraling prices, and low growth rate had to offer some kind of a carrot to again entice that disgusted voter. आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा। 10 crore poor people in the name of the Aadhaar scheme. आपको मैंने बैठने कहा, बैठ जाइए। This so-called FDI आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा, बैठ जाइए। Just to benefit few foreign companies and multinational companies. Sir, due to the paucity of time, I would like to make few points. Government says FDI will create new jobs. सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज ये देश की जो जनता है, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन, कोई किसानी कर रहा है। आप कृपया बैठ जाइए, जब समय आपको होगा तब बोलिएगा। बैठिए। कोई किसानों से खरीद रहा है, कोई किसानों को बेच रहा है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, और रल मिल के whether it is a laborer or a mazdoor or a farmer or a manufacturer or a trader, he is dependent and earning his livelihood by the economy of our country. Sir, जो ये FDI multi-brand retailing जो आ रही है, if we look at the 4 top giants of Tesco, Walmart, Carrefour and Metro, तो जीरो वाला नहीं है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। 24,000 stores हैं, which employ 33 lakh people. So sir, I would like to know, एक सिटी जिसमें 10 लाख पॉपुलेशन होती है, आज उस सिटी में कम से कम 35,000 मैन्युफैक्चरर होते हैं, लाखों करोड़ों उनके काम करने वाले मजदूर होते हैं, लेकिन एक जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा, बैठ जाइए। 140 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, तो लाखों करोड़ों ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के पेट में लात मार के जब 140 मुलाजिम को नौकरी देने वाली बड़ी जायंट स्टोर आएगी, ये जॉब्स क्रिएट कर रही है कि जॉबलेसनेस क्रिएट कर रही है, इनको लगता है अभी समझ नहीं आई। गवर्नमेंट सेज एफडीआई पॉलिसी विल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि इनकी खुद की एफसीआई की रिपोर्ट कहती है
Only 7,687 crores are needed to build rural infrastructure. वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज में सालों पहले एफडीआई अलाउ हो गया था, लेकिन एक नवा पैसा नहीं आया। क्यों? बिकॉज any company which will build, foreign company building infrastructure in India will build it to exploit our farmers and to make their profit, Is it not the point to of order? save and benefit ये कोई the उदाहरण farmers and कर the रहे हैं। people of this country. Building infrastructure ये point of is order the नहीं है duty ना? of the government or is it the duty of a foreign company? Sir, Mr. Sibal said 35 to 40% of the food gets wasted. एक मिनट आप बैठ जाइए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बात क्या है बताइए। एक मिनट आप बोलने तो दीजिए। एक मिनट में बोलिए। और सर एक मिनट होने तो दीजिए। क्या चाहते हैं आप हैं? मेरी बेनती एक नहीं, आप क्या चाहते हैं? ये क्या है? ये हमने बोलना ही बोलना है। बिल्कुल सर, ये तो बोलना ही बोलना है। हाँ देखो, हाँ तो आपका कौन सा मॉडल है तो वो सुनने की तैयारी है, लेकिन आप क्या है बताइए। कौन सा मॉडल है क्या? सर ये ऐसा है, पहले मैं पूछ रहा ये हूँ point of मेंबर order है क्या? साहबा को, मैं मेंबर साहबा को पूछ रहा हूँ, घर में कोई बेकार नहीं जाएगा। ये घर में आपस में सलाह करते हैं कि नहीं? इनके हस्बैंड की ये किस चिट्ठी है, किस नियम के तहत आप बोल रहे हैं इस बताइए। चिट्ठी है सुखबीर सिंह किस बादल नियम की, के तहत आप बोल रहे हैं आनंद शर्मा जी बताइए। को मैं वो चिट्ठी पढ़ना चाहता हूँ। पंजाब being an agrarian economy, कौन सा नियम है बताए तो। that your government is कौन सा taking नियम का this था? major initiative that will offer tremendous benefits to the farmers and the people of the state. We strongly believe that चलिए बैठ जाइए, हो गया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। in the multi-retail will bring in रेकॉर्ड में नहीं जा रहा, बैठ जाइए। सर मैं आ रही हूँ, मुझे बोलने दे, आप उनको बैठ क्यों जाइए। बता रहे हैं? सर ये मेरे बोलने का टाइम है या इनके मैं इनको जवाब दूंगी, आप मुझे बोलने तो दें। ऐसा तो मैंने बहुत सारी चुप करा लिया है, इनको तो 5 साल चुप करा के इनकी छुट्टी कर दी, ये क्या बात कर रहे हैं? सर ये मेरा बोलने का मौका है या इनका बोलने का मौका है? डेप्टी स्पीकर सर, ये किसका बोलने का मौका किधर है? बैठ जाइए। सर किधर बैठ जाइए। ये कहाँ से बोले जा रहे हैं? किधर बैठ जाइए, अब हो गया ना, बैठ जाइए। बैठ जाइए। डेप्टी स्पीकर सर, रिकॉर्ड में कोई चीज नहीं जाएगा। सर ये तो अकेले प्रधानगी के चक्कर में ये सारे मुंह हिला रहे हैं मैडम को खुश करने के लिए, लेकिन इनका पंजाब से तो सफाया हो गया। 5 साल पंजाब की कुर्सी देखते रहे, अभी सपना उधर तो पूरा हुआ नहीं, अब ये प्रधानगी की कुर्सी के चक्कर में पूरा करने में सपने देख रहे हैं। साहब मुझे इन्हें जवाब तो देना दे, ऐसे इनका मुंह बंद करूंगी, बिला जवाब हो जाएंगे, बोलने को देना मुझे। साहब बोलने का मौका तो दे, इनके हर बात का जवाब है। जो इनके पास कटिंग है तो मेरे पास भी कटिंग है, मैं भी जवाब दे सकती हूँ। साइड को बैठाया, आप को डिस्टर्ब करने दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। बाहर करिए सर इनको। जब जवाब नहीं होता है तो शोर मचाएंगे। कृपया बैठ जाइए। अरे सर ये तो मैडम के लिए नाटकबाजी हो रही है, प्रधानगी की कुर्सी के लिए हो रही है, आप काय को इन पर ध्यान दे रहे हैं? अब प्रधानगी शायद मिलवाजे भी प्रधानगी नहीं मिलती, कोई प्रधानगी नहीं मिलेगी आपको, जितना मर्जी बोल लो। ये बोलने से ये प्रधानगी मिलने लगती, ये देख लिया मैडम ने, देख लिया अब हो गई प्रधानगी मिल जाएगी। उसका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, उनका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, सर ये तो एक भी नहीं जाएगा। ये तो पंजाब की प्रधानगी के लिए सारा नाटक रचा जा रहा है, काय को इनकी बातों में आप आ रहे हैं। बोलिए ना, आपका रिकॉर्ड में जाएगा, उनका नहीं जा रहा है, थैंक यू सर। उनको मना कर दिया। कोई शर्म क्या है? आप तो चुप रहिए। So sir, I was talking about FDI bringing investment in infrastructure as being claimed by the government. So like I have stated earlier that FDI was allowed in rural infrastructure, warehousing and cold storage. Decades ago, not a single FDI has come in because foreign companies are only interested in coming here to make their profits and exploit our farmers, not to facilitate our country's progress. Sir, Mr. Sibal says 35 to 40% of food is wasted every year due to rotting.
But sir, their own ICAR, the Indian Council of Agriculture Research, a premier body of the Agricultural Ministry themselves, in their September 2010 clearly states that the rotting is only 0.8% to 10%. So should we believe the minister, or should we believe the government's own report, or is it that the truth slipped out from the minister's mouth? Please, Because now बोलने it suits दीजिए ना, the हल्ला क्या FDI कर रहे हैं? policy. Sir, now I will come to what my colleague is trying to make a noise about. FDI will benefit the farmers. Sir, I would like to mention that in 1988, Pepsi, a foreign company, entered into a tripartite agreement with Voltas, which is part of Tata, Punjab government and Pepsi to benefit the farmers. 1988. आज के क्या हालात हैं सर? जो उन्होंने फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लांट चलाया था टमाटर सॉस बनाने के लिए, वो तो कुछ सालों बाद उन्होंने कुछ ही सालों बाद बेच दिया। और बेचारे फार्मर्स जिन्होंने टमाटर पे डाइवर्सिफाई किया था, आज उनके मशीनरी का जो उन्होंने लोन लिया, मशीन भी बेकार जा रही है। बार-बार खड़ा होते हैं। ट्रेडिशनल क्रॉप, ये तो उसका उनका रिकॉर्ड बन जाएगा, सिर्फ इनका जाएगा। जो पोटैटो फैक्ट्री संगरूर में है, इन्होंने पुट अप बाय पेप्सी, उनके मेजॉरिटी पोटैटोज पंजाब के बाहर से खरीदे जा रहे हैं। एक भी छोटा फार्मर उनको पोटैटो दे नहीं सकता। यह फोटो है जालंधर के फार्मर्स की, जिन्होंने अपने आलू सड़कों पे रोल दिए क्योंकि कोई पेप्सी कंपनी खरीद नहीं रही थी। ये फोटो देखें, बैठ जाइए, बाजी ना देखें। सर, I would also like to quote what Honorable the member, Jalandhar Potato Growers Association has to I say. request you, According to this Indian Express report, please listen to this. not to We supply interrupt. baby corn. The On a member contract price was fixed at in his 8 legs. rupees a kilo. But they You may usually make your bring down points the price by 1 when rupee your a turn kilo, will come. saying it is below specifications अरे and आपका reject the law. समय आएगा तो आप बोलिएगा ना, बोल दिया ना। Sir, jump बीच बीच में खड़ा काहे होते हैं? बार-बार खड़ा होते हैं। बार-बार क्यों खड़ा होते हैं? एक बार आप बोल दिए। Sir Jang Bahadur, known as Potato King, said that भैया the supply बार-बार chain खड़ा is होते हैं। not आप एक बार going वो from खड़ा the हुए, दो farmers बार but खड़ा हुए, still तीन taking बार from खड़ा the हुए, mandis. जब तक तब खड़ा हो जाइए। हौसला लगाए से क्या? Please. Sir, I want to ask, this is what the Potato King of Jalandhar is saying, that they are not picking up the potatoes and still buying from the mandis. But he asks a very valid question. With FDI, retail chains will have to enter into forward contract with farmers for developing supply chains. In case of loss due to natural calamities, normally market forces compensate as prices move up. But in case of prefixed contracts, the farmers will be at the mercy of the retail chains. So, sir, my point is, जिस देश में कभी फ्लड होता है, कभी ड्राउट होता है हर एक साल, तो जब ये प्री कॉन्ट्रैक्ट में जब फिक्स होगा, तो फार्मर का जब क्रॉप खराब हो जाएगा, तो अब तो सरकार या मार्केट कंट्रोल करके उनको कॉम्पनसेशन देती है, प्राइसेस बढ़ती है, उनका कुछ फायदा होता है, तो क्या फॉरेन कंपनी उनको कॉम्पनसेट करेगी या एक बहाना ढूंढेगी? अब बाहर विदेश से आलू, टमाटर, प्याज ही नहीं, लेकिन राइस और चावल, चीनी लाने के लिए। So, this is a report of how in US thousands of lakhs and tons of rice has been rejected because they say there are traces of pesticide. So, sir, as they look for excuses to reject our rice, to reject our wheat, to reject our tomatoes, to reject our potatoes, कौन सा farmer safeguard हो रहा है और कौन safeguard इनको करेगा इनके rejection और quality control से? कृपया समाप्त करेंगे। Sir, 5 minutes, sir. ठीक है मेरा भाई। अपना point, मैं काट देती हूँ बाकी points. सब गवर्नमेंट बार-बार कहती है that the middlemen in the supply chain should be abolished. Sir, this reflects the large number of people who are going to get displaced by FDI. The government is admitting themselves. Has the government framed a policy for these displaced middlemen, or are they not Indians? Is their livelihood not dependent on something? Do we not need to think about them? And sir, when you go to a big giant middleman like Walmart, like my colleague दासगुप्ता जी said, क्या उनके मिडलमैन क्वालिटी कंट्रोलर्स नहीं होंगे? ये नई तरह के मिडलमैन नहीं आएंगे?
जो उनकी पैकेजिंग क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के चक्कर में उनका सारा माल रिजेक्ट करेंगे। तो ये मिडल मैन को हटा के और बड़े जाइंट मिडल मैन को खड़ा कर विदेशी मिडल मैन को खड़ा कर रहे हैं अपने फार्मर्स को और तंग करने के लिए। सर मैं पूछना चाहती हूँ, if a Walmart was able to solve all the farmers' problems, then why is a $20 billion subsidy being given in the US to US farmers? This is what I would like to know, because Walmart has been there for many decades. उनके problems नहीं solve हुए तो हमारे कहाँ से solve हो जाएंगे? सर वॉल्टन फैमिली जो वॉलमार्ट के ओनर हैं, उनकी पर्सनल एसेट्स $100 बिलियन की है, और क्या ये $100 बिलियन की पर्सनल प्रॉपर्टी उनके गरीबों की मदद करके फार्मर्स को अच्छी प्राइसेस देके और सस्ते दामों में बेच के उन्होंने पैसे कमाए हैं, या उनका खून चूस के फार्मर्स का खून चूस के आप खड़ा हो गए? अरे आपका नाम ले लिया है ना, क्या खड़ा हो गया? So is it not a fact that with entering the Walmart in US, अरे आपका नाम ले लिया है ना, क्या खड़ा कैसे हो गए? shut down just between ऐसे ही जब चाहे खड़ा हो जाना है, 2007 and millions जब चाहे lost खड़ा हो their जाते jobs. हैं। Sir, is it not a fact Please that conclude. imports from China अरे आप to the बैठ जाइए, US have trebled in the last बैठ जाइए, 3 years? जब चाहे तब खड़ा हो जाते हैं। तो तरीका है। Sir, is it not a fact that कृपया imports कृपया to समाप्त China करें, have gone up from कृपया $9 समाप्त billion करें। to $27 billion, or 3 times in the last 3 years? आप बैठ जाइए ना, आप कहे कर रहे हैं। Sir, an FDI policy, sir, that could have No, been no, no. used to safeguard जब the तक interests खड़ा हो of this जाएंगे, country. कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर आज नहीं आप कह रहे है। हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कि ऑर्डर? सिर्फ 30% व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर? आपने दिया समय, सर मैं पूछना हम चाहती समय हूँ, दिया ना, बोला कहे नहीं है उसने। बुलाओ लेकिन मतलब सर मैं पूछना चाहती हूँ that सर कृपया समाप्त करें सर आप। 2 मिनट बोलने तो दे, अरे हो गया ना, 2 मिनट खत्म करने दे। कोई सब सर सरकार की FDI पॉलिसी कहती है श्री लालू कि प्रसाद, 30% आपको लोकली श्री लालू प्रसाद, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज देश के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हिंदुस्तानी नागरिक बोल दिया ना, खत्म कीजिए आप। normal Indian family spends 33% of their बहुत income हुआ। on fresh fruit and vegetable. तो ये Please, please, please. फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल तो आपके लोगों से लेगी और 100% कौन सा point बोल रहे हैं? चाइना को चली जाएगी। आज होली के गुब्बारों से कृपया लेकर समाप्त कीजिए आप। दिवाली के पटाखे तक कृपया चाइना से समाप्त आते कीजिए हैं। आप। जब सब कुछ चाइना से आने लग जाएगा तो हमारी 100% मैन्युफैक्चरिंग का वही हाल होगा जो आज यूएस में है। हम भी उनके गुलाम हो जाएंगे क्योंकि सब चाइना से बन के इधर आएगा, इधर की मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी। आप समाप्त कीजिए ना। आखिर में मैं इस सरकार को I would like to remind the great words of the father of our nation who said Under what rule you have raised your point of order? Please tell me. Imported cloth, how What is the rule? better off without it? मैं इनसे यही आज पूछना चाहती हूँ कि आज इवन 53 सिटीज में एक मल्टी ब्रांड रिटेल खुलता है, एक भी करियाने का दुकानदार, रूल पूछ रहे एक हैं। भी मजदूर, Please. एक भी लेबर, What rule? एक भी फार्मर की जान बचाई जाती है। 376 विदेशी सामान आने के कारण तो इसमें हमारे देश का भला कहाँ से हो सकता है? अरे एक मिनट बैठ जाइए ना, फिर आगे, अरे आगे बोलेंगे ना। सर कोई तो या 376 से सर कोई तो ये है ना, ठीक है काम सारा वधिया वो भी साडी जिन्ना ही क्या बोलेंगे जब बोलने को कुछ है ही नहीं? इसमें कहाँ आता है? प्रधान बनने के चक्कर में ठीक है, आ जाओ, बैठो, देख नहीं रहे ना इन्होंने प्रधान बनना इनको है, ना इनकी बैठाओ, सरकार फिर 2 बननी मिनट। है। ना इधर ना उधर से भगा के सर आज मैं ये लालू जी हम नहीं सरकार से बैठेंगे, एक बात पंजाब पूछना का मसला चाहती हूँ। है, ये पंजाब का मसला अब आप Continue going to मानेंगे, court. ये पंजाब का मसला है, हमें बात करनी है। 376 में आता ही नहीं अच्छा है। स्पीकर साहब रिकॉर्ड में नहीं जाए। There is no, प्रधानगी वाली बंदी देख लिया देख लिया। there is no point of order, please. Sit down. There is no point of order. देश को शर्म करो। There is no point of order, please. अरे आप लोग तो बैठ जाइए ना।
द्रोही के पंजाब द्रोही के बना बने बैठे हैं, इनकी बातों में आप क्या सुन रहे हैं? सर का प्रधान बनने के चक्कर सर अरे नहीं आखिर में मैडम को बोलिए। सर जैसे महात्मा आप खत्म गांधी कीजिए जी ना आप। गांधी जी के नाम पे भी चुप नहीं कर रहे तो किसके नाम पे चुप करेंगे? मैं तो गांधी जी का बयान कर रही हूँ, पीछे वो भी बोल। सुन के राजी नहीं है सर, मैं खत्म कर रही अरे हूँ। आप बैठ जाइए ना, पीछे बोल रही The हैं। father of our nation, Mahatma Gandhi said, sir, देयर इज नो that पॉइंट if ऑफ my ऑर्डर, मैंने brother, रूलिंग दे दिया, the खत्म हो weaver गया। is out of work because of imported cloth, then how can I be better off with it? I would like to ask this government, if 53 cities in our country, a single shopkeeper is displaced, a single trader is displaced, a single mazdoor is displaced, a single laborer loses his job, then do a foreign company, वो भी then ये how बोलती is है that तो better सुन- off for सुनिए it? ना। आज ये Please, सरकार please conclude. जवाब दे कि ये देश के कृपया दुकानदारों समाप्त के कीजिए। साथ है या विदेशी दुकानदारों के आओ, साथ जोर से है? बोलती है। ये अपने लोगों की नौकरियां सुरक्षित चाहते हैं या श्री अपनों लालू के प्रसाद। पेट में लात मार के उनका विदेशियों कार्यक्रम का नहीं पेट जाएगा। भरना चाहते हैं या सरकार जवाब लालू दे? प्रसाद।